Welcome to Chemistry Academy, Fajandar High School and Junior College, Wahur. Dear student, myself Sayyid Tanzil sir, and we are going to discuss our topic hydrocarbon. Now in case of hydrocarbon part first, already we have discussed some important concept like definition, what is alkane, then what is general formula of alkane. By using general formula, write the different names of alkane depending upon the number of carbon atoms, name of alkane. And by using the name of alkane, we have written the molecular formula. We have used general formula of alkane, and by using general formula we have written name and molecular formula of the alkane. और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था what is alkyl group or alkyl radical. When one hydrogen atom from alkane is removed, the new group so formed, it is called as alkyl group or it is called as alkyl radicals. वो भी एक पॉइंट हमने कवर किए थे. और उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ alkane. What is structural formula and how to write the structural formula of alkane. And in case of structural formula of alkane, in first part of this topic हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कंडेंस स्ट्रक्चर showing carbon and hydrogen bond. कंडेंस स्ट्रक्चर शोइंग कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक टाइप का कंडेंस स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए. एंड इन केस ऑफ कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन हम लोगों ने क्या स्ट्रक्चर में स्टडी किए थे कि जो दो टर्मिनल कार्बन्स रहते हैं, पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर मिथाइल ग्रुप, दैट इज योर CH3, एंड ऑल मिडल कार्बन्स आर CH2. जब अपन टर्मिनल कार्बन चेक करते हैं, जैसे मेरे पास में अल्केन है पेंटेन. नाउ पेंटेन इट कंटेनिंग 5 कार्बन. नाउ दिस वन इज माय फर्स्ट कार्बन, this one is my last carbon, so these 2 carbons are terminal carbon and these 3 carbons are middle carbon, so this 2 carbon will be CH3. और ये जो बीच के कार्बन्स रहेंगे मिडल कार्बन, ये क्या हो जाएंगे मेरे CH2. so what is the condensed structure of pentane? CH3, single bond CH2, single bond CH2, single bond CH2, single bond CH3, means the same structure we can write like this: CH3, single bond CH2, single bond CH2, single bond CH2, single bond CH3. Now these carbon atoms are terminal carbon, first and last carbon. These carbon atoms are terminal carbon and these 3 carbons are middle carbon. So terminal carbons क्या रहते हैं आप लोगों के? CH3, and middle carbons क्या रहेंगे? CH2. ये एक मेथड हमने स्टडी किए थे पार्ट फर्स्ट में, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन पार्ट फर्स्ट, उसमें ये मेथड हम लोगों ने स्टडी किए. ओके, नाउ कंडेंस स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन टुडेज वीडियो लेक्चर. आज के लिए वीडियो लेक्चर में अपन सेकेंड स्ट्रक्चर पैटर्न देखेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, हाउ टू राइट द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. अब देखो, while writing condensed structure, some or all of the covalent bonds, okay, while writing the condensed structure of alkane, some or all the covalent bonds indicating the number of identical group attached to atom is indicates by a subscript. अब इसका मतलब क्या होता है कि जब आप लोग सेकेंड पैटर्न लिखते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर का, तो जितने भी आइडेंटिकल ग्रुप रहते हैं उनको एक साथ लिखते हैं, इंडिकेटिंग द सबस्क्रिप्ट, मतलब ऑल आइडेंटिकल ग्रुप्स आर रिटर्न टुगेदर. जैसे मैंने यहां लिखा था पेंटेन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन? पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या था? CH3, CH2, 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 single bond CH3. so these middle carbons are identical. जितने भी मिडल कार्बन्स है ये आइडेंटिकल है, CH2, CH2, CH2. इसको मैं एक साथ लिखूंगा. हाउ मेनी CH2 ग्रुप्स आर देयर? 3. सो सेकेंड फॉर्म ऑफ कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर B, क्या बोलेंगे अपन इसको? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर B. नाउ इन केस ऑफ कंडेंस स्ट्रक्चर राइटिंग B, अब मैं पेंटेन कैसा लिखूंगा?
ये हो जाएगा आप लोगों का CH3, देन CH2, हाउ मेनी टाइम्स CH2 इज देयर, 3 times, and finally CH3. Now this is the second method. All identical groups are returned together, और जितने आइडेंटिकल ग्रुप रहेंगे उतने वहां नंबर लिख दो. नाउ पेंटेन में CH2 मिडल कार्बन जो आइडेंटिकल है उसको अपन मिला के लिखेंगे. नाउ ऑक्टेन ये तो पेंटेन हो गया. ऑक्टा मीन्स इट कंटेन 8 कार्बन. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑक्टेन? कैसे लिखूंगा मैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेन? CH3, CH2, 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 CH2. कितने कार्बन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन इज योर CH3. ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट कंडेंस स्ट्रक्चर A, showing carbon single bond. Okay, now these are my terminal carbons. ये हो गया कार्बन नंबर 1 and this one is my carbon number 8. Now middle, how many carbon atoms are there? 1 2 3 4 5 and 6. Now these 6 carbon atoms are identical. ये 6 कार्बन कैसे है? सेम है, CH2 है, तो अपन उसको मिला के लिखेंगे. So what is the structure of ऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3, CH2, 6 टाइम सिंगल बॉन्ड CH3 एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज योर पेंटेन एंड सेकेंड स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टेन. नाउ दिस इज कंडेंस स्ट्रक्चर B. जितने भी आपके मिडल आइडेंटिकल ग्रुप्स रहते हैं उनको एक साथ लिख देने का एंड राइट एट द बॉटम दैट नंबर. कितने है वो? 4 है, 5 है, 6 है. नाउ दिस वन इज योर ऑक्टेन. नाउ सपोज आई हैव टू राइट ब्यूटेन. नाउ ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन. ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन? ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या आएगा? नाउ दिस आर द 4 कार्बन, दिस 2 आर टर्मिनल कार्बन. ये 2 क्या हो गए? टर्मिनल कार्बन. तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, 4 कार्बन है. ये 2 मिडल कार्बन CH2 सेम आएंगे. सो हाउ टू राइट द ब्यूटेन? ब्यूटेन अपन कैसा लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, 2 times single bond CH3. Now this is condensed structure B. Second type of condensed structure of butane. CH3, CH2 twice single bond CH3. अब ये CH2 twice क्या इंडिकेट करेगा? क्या इंडिकेट करेंगे? दैट इज योर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. नाउ सपोज आई हैव टू राइट हेक्सेन. देखो मुझे क्या लिखना है इधर? हेक्सेन. नाउ हेक्सा मीन्स 6 कार्बन. हेक्सा मीन्स 6 कार्बन. अब कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6, दिस 2 आर द टर्मिनल कार्बन्स. कौन से मेरे टर्मिनल कार्बन्स हो जाएंगे? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 एंड टर्मिनल कार्बन विल बी CH3. तो CH3 और CH3. अब बीच में कितने, मिडल में कितने कार्बन्स आ रहे हैं? 4. बराबर. दैट 4 विल बी CH2. कलेक्टिवली वी विल राइट. ओके, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन? हेक्सेन क्या हो जाएगा आप लोगों का? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, 4 टाइम्स सिंगल बॉन्ड CH3 है. CH3 ये 4, 5 + 1 6. दैट इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर B of हेक्सेन. सपोज आई हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टेन. For example, we have to write the structure of nonane, or we have to write the structure of decane. Okay, now hept मतलब 7 कार्बन, nonane मतलब 9 कार्बन एंड decane मतलब 10 कार्बन. क्या होगा स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टेन? टोटल 7 कार्बन्स होंगे. नाउ सी हियर, हेप्टेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. ये मेरा कार्बन नंबर 1 हो गया एंड दिस वन विल बी माय कार्बन नंबर 7. ये 2 कार्बन छोड़ के मिडल में कितने कार्बन आएंगे? 5. ये 1 + 5 6 + 1 7. दिस इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर B of heptane. Now come to nonane. What is condensed structure? Second type of condensed structure of nonane. क्या हो जाएगा आपका nonane? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
7 टाइम्स सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये 7 कार्बन प्लस 2 टर्मिनल कार्बन, 7 प्लस 2 9, एंड 9 कार्बन एटम्स मीन्स अल्केन इज योर known name, right? For decane, what is the structure of condensed structure second of decane? Decane क्या हो जाएगा आप लोगों का? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. Now deca means 10 carbon atoms. Okay, already we have written 2 terminal carbons, तो मिडल में कितने कार्बन्स आ जाएंगे? 8. Now this is the condensed structure of decane. Okay, so the structural formula, write the definition of condensed structure. क्या लिखेंगे आप लोग? डेफिनेशन ऑफ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. राइट फास्ट, मैं डिक्टेट करता हूं. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन बी सिंप्लीफाइड विथ हाइडिंग सम और ऑल द कोवैलेंट बॉन्ड्स. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन बी सिंप्लीफाइड बाय हाइडिंग, मैं छुपाऊंगा, सम और ऑल द कोवैलेंट बॉन्ड. देखो यहां कोवैलेंट बॉन्ड था, कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, मैंने वो यहां हाइड कर दिया. सम और ऑल, एक या सब, by hiding some or all the covalent bonds and indicating the number of identical groups, indicating number of identical groups attached to terminal carbon atoms by subscript. और कौन सा subscript यूज करूंगा मैं? 3, 6, 2, 4, 5. This is the definition of condensed structure. Let me repeat one again. What is the definition of condensed structure? The structural formula can be simplified by hiding some or all the covalent bonds and indicating the number of identical group attached to atom by a subscript, and this formula is known as condensed structure. अब इसका condensed structure pattern first अपन ने वीडियो लेक्चर फर्स्ट में स्टडी किए. Okay, this is the second method to write the condensed structure. Now pause your video, जल्दी से वीडियो पॉज करो and take screenshot. फिर मैं लास्ट स्ट्रक्चरल पैटर्न स्टार्ट करता हूं. राइट फास्ट. Okay, now come to the third pattern to write the स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन. अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे अपन टू राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन. अब अल्केन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने के लिए नेक्स्ट पैटर्न अपन यूज करने वाले हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज जिगजैग बॉन्ड लाइन और जिगजैग लाइन. देखो आफ्टर कंडेंस स्ट्रक्चर अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? बॉन्ड लाइन, or it is called as bond line structure, or it is called as zigzag structure. See here, zigzag structure. अब इसके कुछ रूल्स है टू राइट द जिगजैग स्ट्रक्चर्स या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. अपने ओपन चेन स्ट्रक्चर देखें, देन वी हैव स्टडीड द कंडेंस स्ट्रक्चर. देखो मैं बहुत स्लोली स्टार्ट किया हूं, एकदम बेस से आपका ये टॉपिक स्टार्ट किया हूं फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, और स्लोली इन माय थर्ड वीडियो लेक्चर, ये सेकंड वीडियो लेक्चर है हाइड्रोकार्बन का, थर्ड वीडियो लेक्चर में अपन 11 और 12 के पार्ट पर आने वाले. आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा बेसिक कंसेप्ट मैं कवर करने वाला हूं रिलेटेड टू अल्केन, बिकॉज अल्केन इज द सोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. करूं मैं स्टार्ट? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या जिगजैग लाइन. अब देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर उसी को बोलते हैं अपन जिगजैग स्ट्रक्चर, जिगजैग मैनर. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कुछ रूल्स दिए हुए, स्लोली नोट डाउन करो. सबसे पहला रूल रहता इन दिस फॉर्मूला कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नॉट रिटर्न. पहला रूल हो गया उसका. बॉन्ड लाइन में क्या याद रखने का? क्या इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और इन zigzag line, zigzag manner, the carbon and hydrogen is not written. हम लोग कार्बन हाइड्रोजन लिखेंगे नहीं. That is my first rule. Now second rule, the line representing carbon carbon bond are written in zigzag manner. पूरे 10 स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा. सेकेंड पॉइंट क्या याद रखने का? द लाइन रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड. अब ये लाइन है, द लाइन रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिटर्न इन जिगजैग मैनर.
जो लाइन कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो करेगा उसको मैं स्ट्रेट वे में नहीं लिखूंगा, उसको मैं कैसे लिखूंगा, आर रिटर्न इन जिगजैग मैनर। सिर्फ नोट डाउन करो, मैं एग्जांपल में एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। ओके, रिटर्न इन जिगजैग मैनर एंड कंटिन्यू करो, एंड टर्मिनल ऑफ द जिगजैग लाइन, टर्मिनल ऑफ द जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन के जो दो टर्मिनल एंड रहेंगे, टर्मिनल ऑफ द जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट मैथिल ग्रुप। अच्छे से लिखो, मेरा सेकेंड रूल क्या है यहां पर, द लाइन रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिटर्न इन जिगजैग मैनर एंड टर्मिनल ऑफ द जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट द मैथिल ग्रुप। अब मैथिल ग्रुप मतलब विच ग्रुप, CH3 ग्रुप्स। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, माय फाइनल रूल याद रखो, द पॉइंट वेयर द टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, द पॉइंट वेयर टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ऐसा पॉइंट जहां पर दो जिगजैग लाइन मिलेंगे, द पॉइंट where the two lines are intersect represent, वो पॉइंट क्या शो करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट कार्बन आइटम्स विथ एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। वो पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा, क्या वो कार्बन है, और वैलेंसी के हिसाब से विथ एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, मतलब वैलेंसी के हिसाब से वहां पर हाइड्रोजन आइटम्स रहेंगे टू फुलफिल द वैलेंसी। नाउ वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, अकॉर्डिंग टू दैट वहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स अटैच रहेंगे। दीज आर द 3 रूल्स टू राइट द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और टू राइट द जिगजैग स्ट्रक्चर। मैं 2 मिनट के अंदर तीनों रूल्स रिपीट कर रहा हूं एंड देन वी विल कम टू द एग्जांपल्स। देखो, पहला रूल क्या था, इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और इन जिगजैग स्ट्रक्चर, जिगजैग मैनर, कार्बन हाइड्रोजन आइटम्स आर नॉट रिटर्न। Second rule, the line representing carbon-carbon bond is written in zigzag manner where the terminal points of the zigzag represent methyl group. ओके, एंड थर्ड रूल क्या था, द पॉइंट वेयर द टू जिगजैग लाइन्स आर इंटरसेक्ट, जहां दो लाइन्स मिलते हैं, दैट पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, कार्बन आइटम्स विथ एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। दिस इज द रूल्स टू राइट जिगजैग मैनर स्ट्रक्चर या टू राइट द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूं प्रोपेन से। देखो, वी हैव टू राइट द जिगजैग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। नाउ वी नो प्रोपेन मीन्स हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर देयर। प्रोपेन का मतलब क्या रहेगा, 3 कार्बन आइटम्स, मतलब वो स्ट्रक्चर में कितने कार्बन्स है, 3। अब मैं 3 कार्बन आइटम्स लिखूंगा। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, सी नाउ these are the terminal points। ये कौन से पॉइंट्स हो गए मेरे, पहला और आखिरी टर्मिनल पॉइंट्स। ये टर्मिनल पॉइंट्स इंडिकेट करेंगे CH3 ग्रुप। टर्मिनल पॉइंट्स क्या इंडिकेट करेगा, CH3 ग्रुप। एंड द पॉइंट वेयर 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट। अब ये एक लाइन है, दिस वन इज माई सेकेंड लाइन, और ये दोनों भी लाइन कहां जाकर मिल रहे, ये पॉइंट्स पर। ये पॉइंट इंडिकेट करेगा कार्बन। ये CH3 है, ये CH3 है, 2 कार्बन्स हो गए, जहां पर 2 लाइन मिल रहे, ये पॉइंट इंडिकेट करेगा कार्बन। तो कितने कार्बन्स हो गए, 1 2 एंड 3। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू, देखो ये स्ट्रक्चर कैसा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। टर्मिनल, द कार्बन कार्बन लाइन या बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाय जिगजैग लाइन। पढ़े ना अपन ने, कार्बन कार्बन बॉन्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जिगजैग लाइन है। टर्मिनल कार्बन ऑफ जिगजैग लाइन आर CH3 मैथिल ग्रुप। ये देखो CH3 मैथिल ग्रुप। द पॉइंट वेयर 2 लाइन्स जिगजैग लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ऐसा पॉइंट जहां पर 2 जिगजैग लाइन मिल रहे हैं, वो पॉइंट क्या रहेगा, कार्बन विथ एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। अब यहां कार्बन का वैलेंसी 4 है, ये कार्बन ने ये कार्बन से एक बॉन्ड बनाया एंड 1 बॉन्ड विथ दिस कार्बन, उसने कितने बॉन्ड बनाया,
2, कार्बन का वैलेंसी है 4 और कितने बॉन्ड बना सकता है वो 2, वहां मैंने 2 हाइड्रोजन आइटम अटैच कर दिया, CH3 CH2 CH3. दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या zigzag स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन. नाउ सपोज आई हैव टू राइट zigzag स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन. See here, what we have to write the zigzag structure. किसका zigzag structure लिखूंगा मैं? ब्यूटेन. अब ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन आइटम्स? 4. मैं स्टार्ट करूंगा. दिस इज माय टर्मिनल कार्बन नंबर 1, CH3 CH2 एग्री CH2 CH3. ओके, तो देखो कितने पॉइंट्स आ रहे मेरे पास में. मैं पॉइंट्स काउंट करूंगा 1 2 3 4. Now these points indicate the number of carbon atom. ये पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन आइटम. तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर हो गया ये? ब्यूटेन. नाउ राइट नेक्स्ट वन. सपोज आई हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन. होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब पेंटा, पेंटा, पेंटेन, इट कंटेन हाउ मेनी कार्बन आइटम्स? 5. करो स्टार्ट. 5 कार्बन आइटम. नाउ CH3 CH2 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 CH3. देखो दिस इज पॉइंट नंबर 1, CH3 CH2 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 CH3. कितने पॉइंट्स हो जा रहे हैं? 1 2 3 4 5. और हर पॉइंट इंडिकेट करेगा कि कार्बन आइटम्स है. तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 5. सो हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर देयर? कितने कार्बन आइटम्स हो जा रहे हैं उधर? 5. दैट इज योर CH3 CH2 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 CH3. This is the structure of pentane. Now this is called as bond line structure, जहां पर अपन कार्बन और हाइड्रोजन लिखेंगे नहीं. उसका पहला रूल है, इन zigzag लाइन या इन बॉन्ड लाइन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नॉट रिटर्न. Carbon carbon bond is represented by zigzag lines, zigzag manner. Okay, now suppose I have to write the name of this structure. अब मुझे इसका स्ट्रक्चर लिखना, ये स्ट्रक्चर का नेम लिखना है. अब सपोज आई हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. तो मैं क्या करूंगा? पॉइंट्स काउंट करूंगा, टर्मिनल पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स वेयर टू zigzag lines are intersect. मैं टर्मिनल पॉइंट देखूंगा और वो पॉइंट देखूंगा जहां पर 2 zigzag लाइन मिले, इंटरसेक्ट हुए. नाउ दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट दैट इंडिकेट्स CH3. नाउ these are the point where 2 zigzag lines are intersect. अब वो कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 and 7. टोटल कितने पॉइंट्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब 7 मीन्स दिस स्ट्रक्चर विल बी, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा आप लोगों का? हेप्टेन. कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? हेप्टेन. नाउ नेक्स्ट वन. सपोज वी हैव टू राइट हेयर ऑक्टेन. सपोज वी हैव टू राइट हेयर octane. octa means how many carbon atoms are there? 8. आप ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से स्टार्ट करो, वॉट एवर इट इज. सपोज मैं यहां से स्टार्ट करो. दिस इज माई कार्बन नंबर 1. दिस इंडिकेट CH3 CH3 CH2. कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 7 8. नाउ सी, काउंट द डॉट्स. 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Now 8 means the name of this structure will be, क्या हो जाएगा ये स्ट्रक्चर का नेम? octane. It containing 8 carbon. Now one homework for you, write the bond line structure of decane. Decane, right? The bond line structure of decane. Deca means 10 carbon. तो अब 10 carbon में start करो. CH3 CH2 CH2. start करो zigzag line and write this answer in comments box.
comments the answer of this question in comments box. So this is the method to write the bond line structure. इसका एक और पॉइंट्स मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ. ये मेथड हो गया टू राइट द zigzag स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन. ऐसा ही अल्कीन एंड अल्काइन आता है, सेम पैटर्न में अपन डिस्कस करेंगे अल्कीन एंड अल्काइन, लेकिन अभी नहीं. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर अल्केन, अल्केन खत्म करने के बाद अल्कीन भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस करो. दिस फर्स्ट 3 वीडियो लेक्चर जो पहला हुआ वो, ये सेकंड वीडियो लेक्चर, इसके बाद नेक्स्ट वीक में थर्ड वीडियो लेक्चर आएगा. दिस वीडियो लेक्चर्स आर सोल ऑफ योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC. 40% syllabus entrance plus your regular 11th and 12th depends upon this concept. ये practice करो, practice it well. Now this is the method to write the condensed structure of alkane, और ये हो गया आप लोगों का bond line या zigzag structure of alkane. होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा. मैं ये पार्ट रफ करता हूँ. बॉन्ड लाइन में मैं सेकेंड पार्ट बताता हूँ आप लोगों को, हाउ टू राइट द बॉन्ड लाइन शॉर्ट स्ट्रक्चर. अब देखो, मुझे ये zigzag मैनर्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट नहीं बताना है. ये जो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट लिख रहा हूँ 1 2 3, अगर मुझे ये शो नहीं करना है, मैं स्टार्ट करता हूँ zigzag का सेकेंड पैटर्न. सपोज आई हैव रिटर्न हेयर सपोज मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा और मुझे इसका नेम लिखना है. एकदम सिंपल वे से अपन स्टार्ट करेंगे. आई हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. नाउ द टर्मिनल्स ऑफ zigzag लाइन्स आर CH3 मिथाइल ग्रुप. अपन ने पढ़े टर्मिनल ऑफ zigzags आर मिथाइल ग्रुप. तो ये मेरा CH3 हो गया, ये CH3 हो गया. नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट where 2 zigzag lines are joined, ये मेरा CH2 होगा. हाउ मेनी CH2 ग्रुप्स आर देयर? ये 3 क्या इंडिकेट्स कर रहा है? ये 3 इंडिकेट कर रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कितने रहेंगे मेरे पास में? 3 रहेंगे. मीन्स ये स्ट्रक्चर कैसा आएगा? डू यू नो? नाउ दिस इज योर CH3, CH2 1, CH2 2, CH2 3 एंड CH3. नाउ दिस पार्ट आई हैव रिटर्न कलेक्टिवली. देखो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट आ रहे हैं, कितने CH2 ग्रुप आ रहा है? 1 2 एंड 3. उसको मैंने कलेक्ट करके लिखा है यहाँ पर. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज 1 2 3 4 5. 5 मीन्स ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आप लोगों का? पेंटेन. ये भी स्ट्रक्चर क्या होगा? 1 प्लस 3 5 प्लस 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5. दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज, ये स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? पेंटेन. राइट, इन दिस वे और दिस वे. प्रैक्टिस इट वेल. 11 में ही इसकी प्रैक्टिस करो. ओके. नाउ सपोज आई हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये स्ट्रक्चर का नेम लिखना है. विच अल्केन? ये सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है. ओके, लेट मी रब दिस पार्ट. ओके, मुझे ये स्ट्रक्चर का नेम लिखना है. क्या नेम आएगा इसका? नाउ दिस टर्मिनल कार्बन विल बी मिथाइल. ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा. ये 8 क्या इंडिकेट कर रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कितने रहेंगे यहाँ पर? 8. मतलब टोटल कार्बन कितने हो रहे? 1 प्लस 8 9 प्लस 1 10. सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या आएगा ये स्ट्रक्चर का नेम? डेकेन. नाउ सपोज ये पैटर्न में मुझे लिखना है नोनेन. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ नोनेन. कैसे लिखूँ मैं नोनेन का स्ट्रक्चर? आप अप डाउन कुछ भी कर सकते हैं आप लोग. अब देखो नोनेन मतलब कितने कार्बन? 9. माय कार्बन नंबर 1, दिस विल बी कार्बन नंबर 9. ये 1 हो गया, ये 9 हो गया. बीच में कितने आएंगे? 7. 1 प्लस 7 8 प्लस 1 9. यही स्ट्रक्चर आप लोग ये पैटर्न में लिख कर देखो. Suppose I have to write the structure of heptane. Are you able to write the structure of heptane? लिख सकते हैं आप लोग. हेप्टेन का स्ट्रक्चर ट्राई करो. क्या होगा हेप्टेन का स्ट्रक्चर? कोई भी ये पैटर्न में लिखो या ये पैटर्न में लिखो. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट मतलब बीच में जो पॉइंट्स रहते हैं वो कितने आएंगे? 5. काउंट करो ना. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ये कितने हो जाएंगे? 5. ये आपका मिथाइल ग्रुप CH3, ये मिथाइल ग्रुप CH3, और ये जो CH2 रहेंगे वो कितने रहेंगे?
5 रहेंगे. I agree. Now this structure is your heptane. So this is all about the condensed structure and bond line या zigzag line structure. Zigzag manner या bond line structure. Anyway, you should able to write all this answer. आपको ये आंसर लिखते आना चाहिए. ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा. सो व्हाट, लेट मी रिपीट द रूल्स ऑफ बॉन्ड लाइन. बॉन्ड लाइन के आप लोगों ने रूल्स लिखे होंगे. क्या रूल्स है बॉन्ड लाइन के? इन जिगजैग मैनर या इन बॉन्ड लाइन कार्बन हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन. कहीं भी अपन कार्बन हाइड्रोजन एटम लिखते नहीं, नॉट रिटर्न. सेकेंड पॉइंट रहता द कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाय जिगजैग लाइन. जो कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहता उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते? बाय जिगजैग लाइन. ओके, एंड द टर्मिनल कार्बन ऑफ जिगजैग लाइन, पहला और आखिरी कार्बन जिगजैग लाइन का टर्मिनल कार्बन मतलब फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, ये क्या हो जाते हैं आपके? मिथाइल CH3. एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, point of intersect means where two zigzag lines are joined, which indicates the number of carbon atoms with appropriate number of hydrogen atom. According to valency वहाँ उतने hydrogen atoms आएंगे. So this is a method to write the zigzag line या bond line structure of alkane. Now pause your video and take a screenshot of this topic. अब मैं 10 मिनट्स में खत्म करता हूं अल्केन का आगे का पार्ट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्केन्स, टाइप्स ऑफ अल्केन प्लस नेचर ऑफ कार्बन एटम, दोनों भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, की फैक्टर है. ओके, सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करता हूं फास्ट. ओके, गुड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे. After bond line structure and condensed structure of your alkane, इसमें एक और पॉइंट्स अपन कवर करेंगे. क्या? What are different types of alkane and nature of carbon atom? Type of alkane and nature of carbon atom. Let me start this point also. ओके, सो अपना पॉइंट अपन स्टार्ट कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ अल्केन. ओके, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्केन. अगर आप लोग टाइप ऑफ अल्केन देखेंगे तो 2 टाइप के अल्केन है. वन इज योर स्ट्रेट चेन अल्केन. फर्स्ट पार्ट इज योर स्ट्रेट chain alkane and second one is your branch chain alkane. Most important part of your topic. One is your straight chain alkane and second alkane कौन सा रहता है आप लोगों का? branch chain alkane. Now slowly I am going to start your 11th part. अब मैं 11th part 11 का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्केन्स आर देयर? वन इज योर स्ट्रेट चेन अल्केन एंड सेकेंड वन इज योर ब्रांच चेन अल्केन. ओके, अब देखो मैं स्ट्रेट चेन अल्केन किसको बोलूंगा? द अल्केन, लिसन, द अल्केन इन विच नो कार्बन एटम अटैच टू मोर देन 2 कार्बन्स. See here, what is straight chain alkane? किसको बोलूंगा मैं straight chain alkane? The alkane in which no carbon atom attached to more than 2 carbon atoms. मतलब ऐसी alkane की चेन जिसमें कोई भी कार्बन 2 से ज्यादा कार्बन को अटैच नहीं रहेगा. नॉट अटैच टू मोर देन 2 कार्बन. एक तो वो 1 कार्बन को अटैच रहेगा या 2 कार्बन एटम्स को अटैच रहेगा. दैट चेन इज नोन एज स्ट्रेट चेन अल्केन. सी हियर आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन. मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ. व्हाट इज स्ट्रेट चेन अल्केन? द कार्बन चेन, राइट दिस पॉइंट इन योर नोटबुक. द कार्बन चेन इन विच, कार्बन चेन इन विच नो कार्बन आइटम, कोई भी कार्बन, नो कार्बन आइटम अटैच्ड टू मोर देन 2 कार्बन आइटम, अटैच्ड टू मोर देन 2
कार्बन एटम्स अटैच टू मोर देन 2 C atom मतलब कार्बन एटम. व्हाट इज स्ट्रेट चेन अल्केन? द कार्बन चेन इन विच नो कार्बन एटम अटैच टू मोर देन 2 कार्बन एटम. नाउ फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर प्रोपेन. मैं प्रोपेन लिखता हूं. व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. दिस इज योर प्रोपेन. नाउ सपोज आई एम राइटिंग हियर हेक्सेन. फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां लिखता हूं हेक्सेन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन? क्या आएगा? हेक्सा मतलब 6 कार्बन. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन CH3 दोनों भी सेम है. सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. 1 2 3 4 5 6. आप लोग क्या करो, अप टू डेकेन लिखो, अप टू डेकेन. ओके, नाउ इफ आई एम ऑब्जर्विंग प्रोपेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स? अब प्रोपेन में कितने कार्बन एटम्स हो गए? 3. नाउ कार्बन नंबर 1 अटैच टू हाउ मेनी अनदर कार्बन्स? देखो मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कार्बन. अब कार्बन नंबर 1 कितने कार्बन को अटैच है? ओनली 1. और वो कौन सा कार्बन है? कार्बन नंबर 2 को. कार्बन नंबर 1 अटैच टू कार्बन नंबर 2. कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 3 को अटैच नहीं है. नाउ व्हाट अबाउट कार्बन नंबर 2? If we will observe carbon number 2, that carbon number 2 attached to how many carbon? कार्बन नंबर 2 कितने कार्बन को अटैच्ड है? राइट में कार्बन नंबर 3 और आपके लेफ्ट में कार्बन नंबर 1. मतलब कितने कार्बन को अटैच्ड है? वो 2. राइट में कार्बन नंबर 3 और लेफ्ट में कार्बन नंबर 1. मतलब ये अटैच्ड है 2 कार्बन्स को. कार्बन नंबर 3 अटैच टू हाउ मेनी कार्बन? 1. दैट विल बी कार्बन नंबर 2. मतलब प्रोपेन में कोई भी कार्बन 2 से ज्यादा कार्बन को अटैच्ड है क्या? नो. कार्बन नंबर 1 अटैच टू 1 कार्बन, दैट इज कार्बन नंबर 2. कार्बन नंबर 2 अटैच टू 2 कार्बन, दैट इज कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 1. वैसे आप लोग ये स्ट्रक्चर देखो हेक्सेन. हेक्सेन में कोई भी कार्बन 2 से ज्यादा कार्बन को अटैच्ड है क्या? नंबर ऑफ कार्बन्स को. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स. मैं कहीं भी हाइड्रोजन का डिस्कस नहीं कर रहा हूं. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स. नाउ कम टू हियर CH3 अटैच टू ओनली 1 कार्बन. और वो कौन सा कार्बन है? CH2 अटैच टू, अगर मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूं, दिस इज माई कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6. नाउ अगर मैं कार्बन नंबर 1 की बात कर रहा हूं तो कार्बन नंबर 1 कितने कार्बन को अटैच्ड है? ओनली 1. दैट विल बी कार्बन नंबर 2. कार्बन नंबर 2 कितने कार्बन को अटैच्ड है? कार्बन नंबर 1 एंड 3. लेफ्ट में CH3 है, राइट में CH2 है. टॉप और बॉटम में कुछ है क्या? नहीं. अगर मैं कार्बन नंबर 3 की बात करूंगा, that carbon number 3 attached to how many carbon? That will be your carbon number 2 and carbon number 4. Carbon number 4 attached to carbon number 3 and 5. Carbon number 5 attached to carbon number 4 and 6. अब आपका हेक्सेन देखो. In hexane, any carbon attached to more than 2 carbon atoms. हेक्सेन में कोई भी कार्बन 2 से ज्यादा कार्बन को अटैच्ड है क्या? नो. It is attached to either 1 carbon or attached to 2 carbon. So all are the examples of, ये सब काय के examples हो जाएंगे आपके? All are the examples of straight chain alkane. मतलब straight chain alkane में क्या रहता है? कोई भी कार्बन 2 से ज्यादा कार्बन को अटैच नहीं रहता. एक तो वो 1 कार्बन को अटैच रहेगा या 2 कार्बन एटम्स को अटैच रहेगा. ओके, नाउ कम टू द ब्रांच चेन अल्केन. अब देखो ब्रांच चेन अल्केन लिखने से पहले मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूं. सी हियर. नाउ सपोज आई हैव रिटन हियर CH3 एग्री सिंगल बॉन्ड CH2. ओके, अब यहां पर 2 हाइड्रोजन आइटम्स है. मैं एक हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करता हूं. सिंगल बॉन्ड CH3. अब यहां पर कार्बन का वैलेंसी कितना रहता है? 4. वैलेंसी 4 मीन्स कार्बन विल फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड? 4. उसने
एक बॉन्ड बनाया CH3 के साथ ये कार्बन ने, आई एम टॉकिंग अबाउट मिडल कार्बन, उसको मैं सर्कल करके रखता हूँ, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन लेफ्ट में अटैच्ड है वो CH3 को, राइट में अटैच्ड है CH3 को, मतलब दिस आर द टू बॉन्ड्स, वन बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मतलब वहाँ कितना बॉन्ड हो गया 1, तो 1 2 3, और ऊपर मैंने एक वैलेंसी लिया CH3 अटैच किया, हाइड्रोजन आइटम इट इज रिप्लेस्ड बाय CH3, ये CH2 था ना, वन हाइड्रोजन आइटम अपने सब्सटीट्यूट किए या रिप्लेस किए, वन हाइड्रोजन आइटम इट इज रिप्लेस्ड बाय CH3। अब अगर ये कार्बन चेन की मैं बात करूंगा, ये कार्बन चेन की, सपोज फॉर एग्जांपल फॉर आवर कन्वीनियंट, नाउ दिस इज माय कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, टोटल मेरे पास में कितने कार्बन हो गए 4 कार्बन्स। अब कार्बन नंबर 1 कितने कार्बन को अटैच्ड है, एक ही कार्बन को अटैच्ड है, वह है आपका कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन, अब कार्बन नंबर 2 कितने कार्बन को अटैच्ड है, आप बोलेंगे लेफ्ट में कार्बन नंबर 1 को, राइट में कार्बन नंबर 3 को, और टॉप में कार्बन नंबर 4 को। दिस कार्बन अटैच टू 3 कार्बन 1 2 एंड 3, मीन्स अपन बोल सकते हैं कि दिस कार्बन नंबर 2 अटैच टू मोर देन 2 कार्बन, कार्बन नंबर 2 2 से ज्यादा कार्बन को अटैच्ड है। कैन आई से दिस वन इज योर स्ट्रेट चेन अल्केन, क्या इसको मैं बोल सकता स्ट्रेट चेन अल्केन? अपन ने स्ट्रेट चेन अल्केन किसको बोले थे कि जिसमें कोई भी कार्बन 2 से ज्यादा कार्बन को अटैच नहीं रहेगा, लाइक दिस, कोई भी कार्बन नॉट अटैच टू मोर देन 2 कार्बन, दैट विल बी योर स्ट्रेट चेन अल्केन। कैन आई से दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन? नो, because carbon number 2 attached to more than 2 carbon, so it will be the example of branch chain alkane। ये काय का एग्जाम्पल हो जाएगा? ब्रांच चेन अल्केन। तो हाउ टू डिफाइन द ब्रांच चेन अल्केन? एग्जैक्टली इसके अपोजिट मैं उसका डेफिनेशन लिखूंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रांच चेन अल्केन? क्या लिखेंगे अपन ब्रांच चेन अल्केन? द कार्बन चेन in which one or more than one carbon atoms, एक या एक से ज्यादा कार्बन आइटम, one or more than one carbon atom attached to more than 2 carbon atoms, वो कार्बन चेन में 1 2 या 3, one or more than one carbon atom attached to more than 2 carbon atom, that alkane is known as branch chain alkane। ऐसा कार्बन चेन जिसमें कोई तो भी कार्बन 2 से ज्यादा कार्बन आइटम्स को अटैच रहेगा, एंड दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ, ये काय का एग्जाम्पल हो जाएगा? ब्रांच चेन अल्केन। याद रहेगा आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज आई एम राइटिंग दिस स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3 देन CH3 CH2 CH3। अब ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले मुझे बोलो व्हाई आई हैव रिटर्न दिस CH, ये 2 मैंने CH2 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज टू बैलेंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन, वन हाइड्रोजन आइटम इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप। CH3 ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप रहता है? मिथाइल ग्रुप। यहां पर भी वन हाइड्रोजन आइटम इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पर बॉन्ड का वैलेंसी चेक करने का, जितना वैलेंसी कम रहेगा उतना हाइड्रोजन आइटम अटैच रखो। नाउ लेट मी नो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन और ब्रांच चेन अल्केन। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हूं, ये स्ट्रेट चेन अल्केन का एग्जाम्पल है या ब्रांच चेन अल्केन का एग्जाम्पल है? वेदर इट इज स्ट्रेट चेन अल्केन और ब्रांच चेन अल्केन। अगर मैं ये 2 सर्कल की बात करूंगा, ये कार्बन 2 से ज्यादा कार्बन को अटैच्ड है, CH2 CH3 CH, डेफिनेटली इट इज ब्रांच चेन अल्केन। ये कार्बन 2 से ज्यादा कार्बन को अटैच्ड है, CH CH2 एंड CH3, तो ये काय के एग्जाम्पल हो जाएंगे आप लोगों का? ब्रांच चेन अल्केन। एग्री? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट चेन अल्केन एंड सेकेंड हो गया आप लोगों का ब्रांच चेन अल्केन। द कार्बन चेन इन विच वन और मोर देन वन कार्बन, एक या एक से ज्यादा कार्बन अटैच टू मोर देन 2 कार्बन आइटम,
that is the example of, yeah, that is called as branch chain alkane. तो ये हो गया आपका types of alkane में, one is your straight chain alkane and second one is your branch chain alkane. Now this branch chain alkane further classified into two types, isoalkane and neoalkane. वो मैं बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट. Okay, now come to the type of branch chain alkane and today's last part. आज के वीडियो लेक्चर का ये लास्ट पार्ट है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो. देन वी विल कम टू द नॉमेनक्लेचर पैटर्न ऑफ अल्केन. उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर पैटर्न स्टार्ट करेंगे. नाउ माय पॉइंट, टाइप ऑफ ब्रांच चेन अल्केन, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांच चेन अल्केन. वन इज योर आइसो अल्केन एंड सेकेंड वन इज योर नियो अल्केन. देखो यहाँ पर एक हो गया आप लोगों का आइसो अल्केन और सेकेंड क्या रहेगा आप लोगों का नियो अल्केन. व्हाट इज आइसो अल्केन? द कार्बन चेन, सी हियर आई एम राइटिंग हियर व्हाट इज आइसो अल्केन, द कार्बन चेन इन विच, सी हियर द कार्बन चेन इन विच मिथाइल ग्रुप, the carbon chain in which methyl group, अब methyl group मतलब which group? CH3. methyl group attached to carbon number 2. yes, methyl group attached to second carbon, carbon number 2 मतलब second carbon is called as isoalkane. the carbon chain in which methyl group मतलब CH3 attached to carbon number 2, second carbon in carbon chain is called as isoalkane. For example, I am writing here CH3 single bond CH3 single bond CH3. अब ये मेरा कार्बन चेन है. नाउ इन दिस कार्बन चेन सपोज दिस वन इज माय कार्बन नंबर 1, ये हो गया मेरा कार्बन नंबर 2. अब ये कार्बन नंबर 2 को मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. कार्बन नंबर 2 को क्या अटैच्ड है यहाँ पर? मिथाइल ग्रुप. सो द सब प्रीफिक्स यूज इज, कौन सा प्रीफिक्स यूज करूंगा मैं? आइसो. दिस इज कॉल्ड एज आइसो अल्केन. अब ये कौन सा अल्केन है? नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, 1 2 3 4. टोटल कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन में इट इज ब्यूटेन. क्या नेम आएगा इसका? इट इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन. द कार्बन चेन in which CH3 methyl group attached to carbon number 2 in a carbon chain is called as isoalkane. One methyl group attached to carbon number 2. Okay, for example I am writing this structure. अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आप लोगों का? नाउ दिस इज योर CH3. देखो इधर मैं लिखता हूँ CH3. नाउ CH ये कार्बन हो गया. नाउ CH3 ये कार्बन हो गया आप लोगों का. CH2 ये कार्बन हो गया आप लोगों का. CH3 ये कार्बन हो गया आप लोग. नाउ बोथ स्ट्रक्चर्स आर सेम. ये दोनों भी स्ट्रक्चर क्या हो गए आप लोगों के? सेम हो गए. नाउ दिस इज माय कार्बन चेन. ये हो गया मेरा कार्बन चेन. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 क्या अटैच्ड है? CH3. सो इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे अपन इसको? आइसो. अब टोटल कितने कार्बन्स है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 मीन्स पेंटेन. इट इज कॉल्ड एज आइसोपेंटेन. क्या बोलेंगे आप इसको? आइसोपेंटेन. टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5. और आइसो क्यों बोल रहे हैं अपन? CH3 अटैच टू कार्बन नंबर 2. CH3 अटैच टू कार्बन नंबर 2. आप लोग आइसोहेक्सेन लिखो, आइसोहेप्टेन लिखो. प्रैक्टिस इट. तो व्हाट इज योर आइसोअल्केन? आइसोअल्केन क्या हो गया आपका? द कार्बन चेन in which methyl group attached to second carbon, okay, is called as isoalkane. Now what is your neoalkane? The alkane, see here, what is neoalkane? The alkane in which 2 methyl group, the alkane in which
टू मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 अटैच टू 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू कार्बन नंबर 2, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू कार्बन नंबर 2 in carbon chain, attached to carbon number 2 in carbon chain is called as neoalkane. Example मैं बताता हूँ. What is neoalkane? The alkane in which 2 मिथाइल ग्रुप, 2 CH3 अटैच टू कार्बन नंबर, ये C नंबर मतलब कार्बन नंबर 2 सेकेंड कार्बन को इन द कार्बन चेन इज कॉल्ड एज नियोअल्केन. मैं ये पार्ट रफ करता हूं, इसका जल्दी से राइटिंग कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, नाउ सी है ना व्हाट इज नियोअल्केन. आई एम राइटिंग द एग्जांपल ऑफ नियोअल्केन. मैं यहाँ नियोअल्केन का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ नियोअल्केन का. सी है ना, नाउ CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. नाउ दिस इज माय कार्बन चेन, दिस इज माय कार्बन चेन. हो गया मेरा कार्बन चेन. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2. अब ये कार्बन नंबर 2, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, इस पर कितने CH3 ग्रुप अटैच्ड है? 2. एक अप साइड में है और एक डाउन साइड में. 2 मिथाइल मतलब 2 CH3 अटैच टू कार्बन नंबर 2. इट इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलेंगे? नियोअल्केन. व्हाट वी कॉल इट? नियोअल्केन. अब टोटल कार्बन काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन मीन्स इट इज हेक्सेन. सो द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नियोहेक्सेन. क्या नेम आएगा इसका? नियोहेक्सेन. 2 CH3 group attached to carbon number 2. Now suppose I have to write neopentane. अब पेंटा इस टोटल कितने कार्बन हो गए? 5. एंड नियो मतलब 2 CH3 अटैच टू कार्बन नंबर 2, एक ऊपर रहेगा और एक नीचे. हाउ टू राइट द पेंटेन? सी है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 हो जाएगा आपका C. अब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करो, एक अप एक डाउन. टोटल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4. एक और कार्बन आएगा. नाउ दिस इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन. व्हाट वी कॉल इट? क्या बोलेंगे अपन इसको? नियोपेंटेन. 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू कार्बन नंबर 2. दिस इज योर नियोहेक्सेन. ये हो गया आप लोगों का नियोपेंटेन. एंड दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन आइसोअल्केन एंड नियोअल्केन. ये डिफरेंस है आइसोअल्केन में और नियोअल्केन में. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ अल्केन. ये सब अपने डिस्कस किए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ अल्केन एंड टाइप ऑफ अल्केन. सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट. ओके, टाइप ऑफ अल्केन. ओके, सो होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. व्हाट इज कंडेंस स्ट्रक्चर, what is bond line structure? Okay, condensed structure, bond line structure. Then how many types of alkane? Straight chain alkane and branch chain alkane. And उसके बाद में type of branch chain alkane, isoalkane and neo. तो iso अपन किसको बोलते हैं? 1 methyl group attached to carbon number 2. मैं आपको आइसो अल्किल बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आइसो अल्किल बताऊंगा बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल पार्ट एंड टाइप ऑफ अल्केन. नो टेक स्क्रीनशॉट, पॉज योर वीडियो, टेक स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन ऑल पॉइंट्स. थैंक यू.